Okay, all right, friends. Welcome you all. Today we'll be doing Rusu Paper 1 Section 1 Western Political Thought. दशरथ सर स्टार्ट कर लीजिए. ऐसे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें. ठीक है. You guys can add some values to have. Am I audible? Yes, sir. Go ahead. Rousseau. He is thinker of paradoxes. His ideas inspired socialists, liberals, radical democracy, direct and totalitarian as well. So yeah, because of his thoughts used led to in conclusion that he's called to be thinker of paradoxes. He was champion of direct democracy influenced by Geneva, experience of Geneva, Switzerland. He was also father of French revolutions, giving the concept of liberty, equality, fraternity, rather positioning these concepts. He is also said to be father of popular sovereignty, giving the concept of general will. His time is 1789 onward, time of modernization and science was going on. Located in France, main concern was reconciliation between liberty and authority, and he went for self-made laws. School of thought, रूरल बैकग्राउंड से विलेजर के कॉन्सेप्ट से उन्होंने यूज किया जो भी था. क्रिटिसाइज रेशनैलिटी, he criticized science because he considered science destroyed our life, had taken away real pleasure, and he was great influenced Gandhian critique of modernity. Rather, he influenced. So, books written by him is mainly Social Contract, in which three statements are there famously. First is man is born free, but is everywhere in chains. Second is man should be forced to be free. Third is social contract is the general will of the people. We shall study these things later. First point, first statement itself is that man is born free, but everywhere in chains. Yeah, so what does he mean by this statement? So it tells that God has given birth to man, but society has put chains in the form of laws and customs. Yeah. What was the objective of life? So in order to be happy, man should have freedom, according to Rousseau. Freedom, what does freedom mean? Freedom means when man acts according to his own will, that is freedom. And that is self-made laws, influenced by direct democracy of Geneva. Means if we are under self-made laws, then we can also be said to free. This freedom was not absolute like in a state of nature. Rather, he didn't mention that, but he will mention another social contract theory. He criticized British representative democracy. Englishmen are free only once in 5 years. So he will compare the democratic system working in England and in Geneva, and he will go for Geneva's concept theory. On human nature, since he is also social contractarian, so on human nature he tells that humans have love, sympathy. It is greater than depraved animal. They are more than depraved animal. A man is essentially good. Feeling of love is there, sympathy for others are there. But civilization has depraved, what is this? What civilization has led to depraved animal, means lost sympathy for each other. Is this so? Man has lost sympathy for others, that is why he has become depraved animal. Yeah, okay. I think आप ना माइक थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, वॉइस बैकग्राउंड टाइप से आ रहा है, बैकग्राउंड से आ रहा है थोड़ा. First, he was also first to show reason. He was also first to show that reason is not helpful. Only how to gain, protect property. So, I'm again not clear here. Please let me clarify. Basically, law है ना कि reason in man helps him that manner. यहाँ पे ये बोल रहा है कि reason कुछ काम का नहीं है. Reason सिर्फ हमको gain property करना ये सब सिखाता है. Protection करना अपने आप को, selfish बनाता है खुद को. ओके सर, आप ना ये रूसो कर दो, मेरे से ये बार बार अटकूंगा, मुझे लग रहा है आगे जाके. ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ. अच्छा, तो यहाँ पे वही है कि ही इज द फर्स्ट वन टू शो कि रीजन इज नॉट हेल्पफुल. रीजन जो होता है एक्चुअली, जो रैशनैलिटी या फिर रीजन बोलते हैं ना, या फिर जो सिविलाइजेशनल वैल्यू सिस्टम है, उसके वजह से जो इंसान नेचुरली ब्यूटीफुल होता है, नेचुरली लविंग सिंपैथेटिक होता है, वो हम खराब होता है एंड वी फाइट अगेंस्ट ईच अदर. तो ये उसका किया हुआ है. तो ह्यूमन नेचर को इनिशियली पॉजिटिव बोलता है, लव सिंपैथी, बट
because of civilization, because of reason, because of society, we become as depraved animal. फिर स्टेट ऑफ नेचर में क्या होता है? तो स्टेट ऑफ ब्लिस है, मैन इज हैप्पी एंड फ्री. बट मॉडर्न टाइम्स में सेम वही बात, लाइफ जो है आर्टिफिशियल है एंड इम्पैक्ट ऑफ रीजन है एंड माइन एंड दाइन कंसेप्ट आया है. तो माइन एंड दाइन मतलब मेरा और तेरा, हम लोग झगड़ते रह रहे बस. एंड इसकी वजह से जो मैन है वो नोबल सैवेज बना है, डिप्रेव्ड एनिमल बना है. ही हैज लॉस्ट सिंपैथी टू अदर्स, लव फॉर अदर्स. ठीक है, वही पॉइंट है घुमा फिरा के. फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है रूसो के अंदर? वो कॉन्ट्रैक्ट को बोलता है, जनरल विल का कंसेप्ट देता है वो कॉन्ट्रैक्ट को. आई एम ऑडिबल राइट, क्लियरली? Sir, perfectly. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट रूसो में बनता है, उसके बुक का नाम है अपने देखा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है. तो रूसो जो है वो कंसेप्ट ऑफ विल देता है. ही गिव्स टू टाइप्स ऑफ विल्स, वन इज रियल विल एंड वन इज एक्चुअल विल. रियल विल जो होता है वो ओरिजिनल विल होता है, जो इसेंशियली गुड होता है. जो अपन ने उनका ह्यूमन नेचर का देखा ना कि भाई लविंग है, सिंपैथेटिक है. तो वो एक्चुअल विल जो होता है वो पोल्यूट हो गया है, इट इज शेप्ड बाय द सोसाइटी, सेल्फिश विल बन गया है. तो जनरल विल क्या होता है? सम ऑफ रियल विल्स ऑफ एवरीबडी, ये जनरल विल बनता है. एंड दिस इज हाउ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड. इसका एग्जांपल देखना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया. तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज द जनरल विल ऑफ द पीपल. तो जनरल विल होता क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज इनडिविजिबल, इट इज इसेंशियली गुड, इट इज ऑर्गेनिक इन नेचर, नेचुरली आता है वो, किसी ने बनाया हुआ नहीं है. पॉपुलर सॉवरेंटी है, मतलब कि पीपल आर सुप्रीम. एवरीबडी शुड फॉलो द जनरल विल टू बी फ्री, एंड वी शुड हैव पावर टू पनिश इफ डज नॉट फॉलो. ये थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट बोलते हैं कि रूसो बोलते हैं मैन शुड बी फोर्स टू बी फ्री. तो इसी लाइन से या फिर इसी चीज से वो जो टोटलिटेरियन स्टेट्स है बाद में क्रिटिसाइज करते हैं कि ही इंस्पायर टोटलिटेरियन ऐसा करके. एक और लाइन भी है ना, शायद ये नीचे जो लिखा हुआ है देखो. रू हाँ हाँ. ये जो फर्स्ट पॉइंट है जनरल विल में, इट इज इनडिविजिबल. हाउ इज जनरल विल इनडिविजिबल? किस कंटेक्स्ट में ये यूज हुआ है, ये प्लीज एक्सप्लेन करिए. इनडिविजिबल, यार मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर, अगर किसी को पता हो तो बता देना. बट आई थिंक जैसे सॉक्रेटिस बोलते हैं ना कि हैप्पीनेस परमानेंट होना चाहिए वगैरह ऐसा कुछ, तो वैसा ये भी जनरल विल काइंड ऑफ परमानेंट होगा. मतलब उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, उसको डिवाइड करके अलग 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 एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते उसके. जनरल विल मींस दे आर स्टेबल. ओके, मतलब बाय कलेक्ट इसके 4 फीचर्स होंगे. ठीक है, एक तो कलेक्टिव इंटरेस्ट, मतलब सारे लोग मिल के वो जो भी डिसीजन लेंगे या फिर जो भी काम करेंगे वो सबका उसमें सहमति होगा. ओके, दूसरा है रिफ्लेक्टेड हायर सेल्फ. ठीक है ना, मतलब एक्चुअल विल और जनरल विल से जो है ना दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं. एक्चुअल विल के 4 प्रॉपर्टी हैं और जनरल विल के भी 4 हैं, मैं बताती हूँ. एक्चुअल विल होता है जो वो मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट. ओके, ऊपर से वो दूसरा है हो जाएगा लोअर सेल्फ, मतलब वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जो पर्टिकुलर इंसान है. ओके, तीसरा हो जाएगा ग्रेटिफिकेशन ऑफ डिजायर, मतलब खुद के ही डिजायर को में वो उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे हैं. ओके, एंड दैट्स व्हाई ये अनस्टेबल है. दैट इज द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक. जनरल विल में क्या कहा गया है कि ये बाय कलेक्टिव इंटरेस्ट है, मतलब सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं एंड सबके ही लिए अच्छा है ये. ओके, द सेकंड वन इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि रिफ्लेक्टेड हाईएस्ट सेल्फ, मतलब आप दूसरे के लिए कर रहे हो तो डेफिनेटली दिस इज अ गुड थिंग एंड वुड रिफ्लेक्ट हायर सेल्फ. ओके, द थर्ड विल बी एक्ट्स ऑफ रीजन, मतलब आप ये रीजनेबल है तभी तो आप कम कर रहे हो. ठीक है, एंड फोर्थ वन इज दिस इज स्टेबल. सो तो वेरी यही है नाइसली जनरल. एक्सप्लेन्ड, वेरी नाइसली एक्सप्लेन. बट अभी ये वाला जो इंडिविजुअल वाला पॉइंट है ना, आई गेस मुझे मुझे ये लग रहा है कि इंडिविजुअल मीनिंग जनरल विल सबकी कलेक्टिव विल है. तो अगर कलेक्टिव विल में कुछ लोगों को हटा दिया जाएगा या सबकी विल नहीं कंसिडर की जाएगी तो वो इंडिविजिबल नहीं रहेगी. इट इज इंडिविजुअल इन द सेंस कि आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, सबको साथ मिलके रखना पड़ेगा. दैट इज व्हाई इट इज इंडिविजिबल आई गेस. बट आपका पॉइंट काफी अच्छा था, ये पॉइंट्स मैंने लिख भी लिए इसीलिए, एक्चुअल विल वर्सेस जनरल विल. थैंक्स फॉर दैट. ओके, कंटिन्यू.
सर कंटिन्यू सर. पीपीटी में कोई प्रॉब्लम आया है, आई गेस. नॉट हाँ, पीपीटी. नाउ एम आई ऑडिबल राइट? यस. ठीक है, तो मैंने थोड़ा नेट से कॉपी पेस्ट करा ये जनरल विल के बारे में. तो जनरल विल वहां पे लिखा है कि इट इज द विल ऑफ द कॉमनवेल्थ, डिजायर्स कॉमन गुड, इज मोरल, इज रियल विल. कलेक्टिव विल जो था ना, कलेक्शन ऑफ रियल विल्स ऑफ द इंडिविजुअल, इट इज नेवर इन कॉन्फ्लिक्ट विथ इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट, इज एब्सोल्यूट बिकॉज इंडिविजुअल हैज नो राइट्स अगेंस्ट इट. जो अपन ने देखा ना, everybody should follow the general will and we should have power to punish if one is not following. It is inalienable because it is the will of the collectivity and cannot be expressed by anyone else, and is infallible because it is never against common good. Thus Rousseau conciliates between liberty, sovereignty, and subordinates individual completely to the state and general will. Sovereignty is made absolute, inviolate, inalienable and sacred. ठीक है, आगे चले क्या अपन? यस सर, श्योर. इसका क्रिटिसिज्म भी है बट ये बाद में देख लेंगे अपन इसको. फिर वैल्यू ऑफ थियोरी, पॉइंट्स टू रिमेंबर, छोड़ो इसको. ठीक है, तो आगे चलते हैं. मतलब आगे क्रिटिसिज्म बोला है यहाँ पे भी. पॉपुलर सोवरेंटी इज अ मिथ, अ रिटोरिक और अ नोबल लाई. इट्स ओनली यूटोपियन एंड फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट. एब्सोल्यूट पावर टू द स्टेट, thus it can be misused to justify totalitarianism, coercion and oppression. फिर एक क्वेश्चन है, रूसू जनरल विल इज हॉब्स लिवाइथन विथ हेड चॉप्ड ऑफ. इसका आंसर में अपन लिखेंगे कि भाई रूसू जो है ये थिंकर ऑफ पैराडॉक्स है. he has inspired at the same time liberals as well as socialists as well as radical democrats as well as totalitarians. मतलब काफी लोगों को ये इंस्पायर करते हैं. इनका थियरी दिया है जनरल विल का, जो कि कलेक्शन ऑफ ऑल द रियल विल्स ऑफ द पीपल है. रियल विल के प्रॉपर्टी देखे जाए अपन ने, ऑर्गेनिक है, इंडिविजिबल है, इट इज प्री कंडीशन फॉर लिबर्टी. बट इन सब के बावजूद वो बोलते हैं कि मैन शुड बी फोर्स टू बी फ्री, मतलब कि पनिशमेंट देने की पावर होनी चाहिए. फिर इसी चीज से इंस्पिरेशन मिला है हिटलर, मुसोलिनी, हु जस्टिफाइड कोअर्शन एंड लेजिटिमाइज पावर. फिर हम कंपेयर करेंगे लिवाइथन से कि अगर लिवाइथन क्राउन है जो दिख रहा है हमको, जनरल विल एक फिलोसॉफिकल एंड कंसेप्चुअल आइडिया है जो कि यूटोपियन है, तो इसलिए दिख नहीं रहा है, इट इज डिफ्यूज्ड. लिवाइथन ने डायरेक्टली स्टेट का नाम लेके स्टेट बना दिया, एब्सोल्यूट स्टेट बना दिया बोल के. ये बस छुप छुप के बना रहा है. बोथ आर एब्सोल्यूटिज्म. However, Rousseau is also champion of direct democracy, and he was inspired from direct democracy in Geneva. Thus, Rousseau seems to be more genuine. ये क्रिटिसिज्म है इनका. एक बार ऊपर देख लेते क्रिटिसिज्म में क्या क्या लिखा है, देख लेना, ज्यादा हो जाएगा. कंप्लीट नहीं हो पाएगा. एक काम करते हैं, पूरा खत्म कर लेते हैं, उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो क्रिटिसिज्म पे आ जाएंगे वापस. ठीक है, वैसा करते हैं. फिर आगे टाइप्स ऑफ सॉवरेंटी दी हुई है कि लीगल सॉवरेंटी हॉब्स का है, लीगली स्पीकिंग स्टेट इज सॉवरेन, लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन एंड स्टेट शुड हैव पावर टू पनिश. एक है लीगल सॉवरेंटी. दूसरा है पॉलिटिकल सॉवरेंटी, जो लॉ देते हैं. इसे सॉवरेंटी एक्सरसाइज बाय द पार्टी व्हिच फॉर्म्स द गवर्नमेंट. कल अपन ने देखा था रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, कंसेंशुअल होना चाहिए एंड पीरियोडिक इलेक्शंस होने चाहिए, एंड मैन आल्सो हैज राइट टू रिवोल्ट. तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेंटी जो लॉ देते हैं. फिर फिलोसॉफिकल सॉवरेंटी है जो रूसू का है, जो सॉवरेंटी बोलते हैं कि लोगों के साथ में है, एंड ही जस्ट गिव्स द फिलोसॉफी और द कंसेप्चुअल आइडिया. पॉपुलर सॉवरेंटी या फिर जनरल विल एंड कलेक्शन ऑफ ऑल द रियल विल्स. ठीक है, ये रहा रूसू. एक बार हम क्रिटिसिज्म देख लीजिए, ऊपर लिखा था ना. ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है ना. तो this theory is based on presumption of social contract. Society and state are not made by the contract but are an evolution. The very premise on the theory which the theory is general will is constructed are faulty.
प्रिजम्पशन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे है ये। पैराडॉक्सिकल है कि रूसो ने कंसीव किया स्मॉल सिटी स्टेट where all the adults could be participating in making the general will. Today, it is not possible to have such a city state or village communities. In fact, it was not possible even during his own time. तो सेकंड था कि अभी मल्टी डाइवर्स एंड लार्ज सोसाइटी में पॉसिबल नहीं है। रूसो इज अगेंस्ट रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जनरल विल ही सेज इज एलिनेबल एंड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एक्सेप्ट बाय द होल बॉडी पॉलिटिक। इन मॉडर्न स्टेट रिप्रेजेंटेशन इज द ओनली पॉसिबल, जो प्रैक्टिकल बोलता है ना अरिस्टोटल, only possible method of government. Rousseau rejects majority will as general will, and there could be no other method to discover it. फिर रूसो का जनरल विल जो है always wills common good, therefore moral and absolute, but this is fallacious assumption. No will can be made on a priori ground of moral will. The will of the state has to justify itself by its performance and achievement. It is only an individual that can accord it morality if he adjusts its achievement as moral. फिर यहाँ पे लिखा है कि फैलेसी है कि नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कॉमन गुड एंड गुड ऑफ द इंडिविजुअल। टू सबऑर्डिनेट द इंडिविजुअल ऑन प्रायरी assumption टू द सोसाइटी एंड द स्टेट इज टू डाइवेस्ट हिम ऑफ हिज पर्सनैलिटी। यहाँ पे हम कांतिया आइडिया जो है ना, एवरी मैन इज एन एंड इन, शुड बी ट्रीटेड एज एन एंड इन हिमसेल्फ, नॉट एज ए मीन्स टू एन एंड, ये रिलेट कर सकते हैं इस चीज से। यहाँ पे इट डिनाइज फंडामेंटल राइट विच आर द क्रक्स ऑफ डेमोक्रेटिक थियरी ऑफ स्टेट। Sovereignty is neither absolute nor sacred as Rousseau defines it. Sovereignty is limited by the purpose that it has to serve. Sovereignty exists because it is needed for the performance of the end of the state. Sovereignty is not the end but means to an end. Rousseau क्या कर रहे हैं यहाँ पे? End बना रहे हैं उसको। General will or the will of the corporate body politic is a myth. It does not exist. It is fictitious accord. ठीक है। फिर इंडिविजुअल को फोर्स कर दिया टू ओबे द लॉज ऑफ द स्टेट, ये पैराडॉक्सिकल है एट द सेम टाइम। ठीक है, फिर एक आगे स्कॉलर है मैक आयर, जिन्होंने बोला कि रूसो इक्वेटेड विल फॉर द जनरल गुड विद द विल फॉर ऑफ द जनरलिटी। जनरल विल कुड बी अ विल फॉर द कॉमन गुड, but to say that it is will of the commonwealth is beyond facts of the state life. किसी को ये समझ आया क्या? मैकाइवर ने क्रिटिसाइज किया था कि रूसो, सॉरी बोलिए ना। गो अहेड। ओके, सो मैकाइवर ने रूसो का जो ये थीम था कि विल ऑफ द जनरल गुड, मतलब अगर कोई स्टेट के लिए सही है फिर वो इंडिविजुअल के लिए भी सही है, इस अजम्पशन को रूसो के हिट किया था मैकाइवर ने। और ये स्टेटमेंट उसी के खिलाफ है कि आप ऐसे इक्वेट नहीं कर सकते कि विल फॉर द जनरल गुड विल बी द विल ऑफ द जनरलिटी। मतलब आप एक जनरल परसेप्शन बना रहे हैं कि जो स्टेट के लिए सही है वो एक इंडिविजुअल के लिए भी सही होगा ही होगा। एक बार मैं फिर से समराइज कर दूं कि ऊपर से जो 7-8 पॉइंट्स थे, क्या कहते हो आप लोग? ओके, तो फर्स्ट वाले में बेसिस जो है उनका वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का एजम्पशन है कि सोसाइटी एंड स्टेट कॉन्ट्रैक्ट से बना है, ना आर्क इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये मतलब ये एजम्पशन ही फॉल्टी है बोल रहे हैं, बेसिक एजम्पशंस। फिर पैराडॉक्सिकल है कि स्मॉल स्टेट्स के लिए बनाया था उन्होंने, ये लार्ज स्टेट्स के लिए काम का नहीं है। एंड रूसो इज अगेंस्ट रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर थर्ड स्टेटमेंट में वो मोरालिटी के बेसिस पे बोलते हैं रूसो कि जनरल विल अच्छा ही होगा, हमेशा कॉमन गुड ही होगा। बट ये भी गलत है कि जरूरी थोड़ी है कि अच्छा होगा। स्टेट को हमें जस्टिफाई करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट, एंड इट इज ओनली एन इंडिविजुअल हु कैन डू इट। ऐसे हमेशा सही है बोलना गलत है। फिर एक और फैलेसियस एजम्पशन है कि देयर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कॉमन गुड एंड गुड ऑफ द इंडिविजुअल। ये अलग अलग हो सकता है ना, इंडिविजुअल का अलग हो सकता है, मेजोरिटेरिज्म अलग होगा। Thus, Rousseau is denying fundamental rights, which is the crux of democratic state. फिर sovereignty is neither absolute nor sacred, as Rousseau defines it. तो नहीं होना चाहिए, मतलब end होना चाहिए। Sovereignty is not an end, but a means to an end. फिर
फिर जो इंडिविजुअल इज फोर्स टू ओबे द लॉज ऑफ द स्टेट, वो बोलते हैं ना कि मैन शुड बी फोर्स टू बी फ्री, ये भी थोड़ा पैराडॉक्सिकल है। एंड लास्ट में मैकेवर क्रिटिसाइज करते हैं विल ऑफ द जनरल गुड एंड विल ऑफ द जनरलिटी सेम नहीं होगा। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट है ना, विल फॉर द जनरल गुड एंड विल ऑफ द जनरलिटी। इसका मीनिंग जो मुझे समझ में आया मैं वो बताना चाहती हूँ। विल फॉर द जनरल गुड, यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस चीज को कि ये सबके लिए भला है, ये सबके भले की चीज है। जरूरी नहीं है जो सबके लिए भले की चीज है वो लोग डिमांड कर रहे हो। विल ऑफ द जनरलिटी मतलब जो जनरल लोग हैं वो डिमांड कर रहे हो उस चीज, आप उनको दे रहे हो जनरल गुड की तरह कि ये सबका, इससे सबका भला होगा, मगर जरूरी नहीं है कि लोग डिमांड भी वही कर रहे हो। ये यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है इसका मतलब। किसी को कुछ और बोलना हो तो भी बोल सकता है। मेरे नोट्स में मैकाइवर को क्रिटिसिज्म की तरह नहीं लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है कि मैकाइवर ट्राई टू क्लैरिफाई दैट जनरल विल इज नॉट द विल ऑफ द स्टेट बट विल ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। का सो मैकाइवर आपकी जो लाइन है उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही है, आपकी लाइन को एक्सटेंड करते हुए इस चीज को बाद में लाइन को ऐड किया जा सकता है जो यहाँ पे 8th पॉइंट में लिखी हुई है कि जनरल विल का मतलब ये जनरल विल स्टेट की विल नहीं थी, वो लोगों की विल थी। और यहाँ पे जो विल फॉर द जनरल गुड है वो जरूरी नहीं है कि विल ऑफ द जनरलिटी हो। ठीक है, तो वहां पे वो कॉन्ट्रडिक्शन बता रहे हैं। सपोर्ट मतलब जो आपने लाइन बोली उसके बाद में अगर इस लाइन को ऐड किया जाए तो मीनिंग निकल रहा है मेरे अकॉर्डिंग। Anybody else has anything to say? छः पॉइंट्स लिखे हैं, मैं क्विकली बता देता हूँ। ठीक है, तो ये थियरी जो है ना, इन स्पाइट ऑफ ऑल इट्स इलॉजिकलिटीज एंड कॉन्ट्रडिक्शंस, ये स्टिल यूजफुल है, ऐसा बोला है यहाँ पे। क्यों यूजफुल है? पहली चीज तो इट रेफ्यूटेड द थियरी ऑफ एब्सोल्यूट एंड इनएलिएनेबल नेचुरल राइट्स। फिर इट पुट्स द अथॉरिटी ऑफ स्टेट ऑन द कंसेंट ऑफ द पीपल। तो इन्होंने कंसेंट लेके आ गए सामने, वही मतलब एम्फेसाइज हुआ थियरी ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी में, कॉमनवेल्थ को सॉवरेन बना दिया उन्होंने। फिर इथिकल बेसिस दिया एक सॉवरेंटी को, इथिकल एंड मोरल प्रिंसिपल्स एंड विल ऑफ द कॉमन गुड, ये प्रिंसिपल दिए उन्होंने। फिर इट फेल टू गारंटी इंडिविजुअल फ्रीडम यट रूसू बेस्ड इट ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम। तो मतलब यहाँ पे ही हैज ट्राइड टू कंसाइलिएट इंडिविजुअल लिबर्टी एंड स्टेट सॉवरेंटी, तो मतलब दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, फिर आगे है दैट इज व्हाई लॉर्ड मॉर्लेस सेड वुड इट नॉट हैव बीन बेटर फॉर द वर्ल्ड इफ रूसू हैड नेवर बीन बॉर्न। ये क्रिटिसिज्म में लिख सकते हैं, पता नहीं। He feels if Rousseau had not lived, the awful insanities of French Revolution might have been averted. Rousseau's phrases liberty, equality, and fraternity became the guiding spirit of French Revolution and have been influencing political philosophy and political movements since then. G.D.H. Cole has described social contract as by far the best of all textbooks of political philosophy and says that Rousseau's influence so far from being dead is every day increasing. ठीक है, आई थिंक एक दो स्कॉलर मिल गया अपने एक्स्ट्रा। डज एनीबॉडी एल्स हैव एनीथिंग टू से ऑन रूसो? ये Can be one thing which can be added here. रूसो का एक पॉइंट था जिसको इलेबोरेट किया जा सकता है, एंड द पॉइंट इज कि रूसो वाज अगेंस्ट साइंस एंड रीजन। तो यहाँ पे पोस्ट मॉडर्निस्ट ओवरटोन्स देखती हैं उसके थॉट में, क्योंकि जो पोस्ट मॉडर्निस्ट होते हैं वो भी क्रिटिसाइज करते हैं साइंस और रीजन को कि जरूरी नहीं है कि जो साइंस कह रहा है वो सच ही हो। डू यू नो कि आगे क्या होने वाला है? जो साइंटिफिक थ्योरीज होती हैं वो भी तो बाद में चेंज होती है ना, उनका क्रिटिसिज्म आता है, फिर एक नई थ्योरी आती है। तो देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट ट्रू। और रूसो भी उसके अगेंस्ट थे कि साइंस वाइज कुछ नहीं होता, रीजन भी जरूरी नहीं है कि रीजन सही चीज दे रहा हो। और रीजन ने ऑल्दो उनका जिस जिस रीजन के लिए उन्होंने साइंस को क्रिटिसाइज किया था वो अलग था कि साइंस की वजह से इंसान सिंपैथी लूज कर गया है, एंड what was that word? Deprived animal. Yeah, that's all that I have to add.
मैं ना सपोर्ट करना चाहती हूँ आपके पॉइंट को कि रूसो का 2 वर्क है, ओके, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, ओके, दूसरा है डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट। उसमें उन्होंने कहा है कि मोरालिटी डाउन हो गई है बिकॉज ऑफ साइंस, ओके, मतलब लोग सोचने लगे हैं ना, तो फिर इनकी मोरालिटी और भी डाउन हो गई है। मतलब अ, अ, आपके पॉइंट को मैं सपोर्ट कर रही थी, तो ये 2 वर्ड आप लोग लिख लोगे तो सही होगा, क्योंकि इसमें ही इन्होंने कहा है रूसो। रिपीट करना, क्या नाम है? डिस्कोर्स ऑन डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, दूसरा? दूसरा है डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट। ठीक है। और इसमें ही ये बोलते हैं कि जो नेचर है ह्यूमन का, जो इंडिविजुअल है, वो इंस्टिंक्ट के द्वारा गाइड किया गया है, ना कि रीजन। दे वर्क ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंस्टिंक्ट, ओके। ऑन दिस पॉइंट इसके आगे पीछे कोई और लाइन लिखी हो, क्योंकि ये थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट जा रहा है। कंटेक्स्ट समझने के लिए 1-2 लाइन और होती तो और मीनिंगफुल लगता, if it is there in your notes. नहीं, ये जस्ट क्रिटिसिज्म की तरह हो गया ना कि मैन इज नॉट वर्किंग एज पर द रीजन मेक्स अ मैन डिप्राइव्ड एनिमल, सो मैन ट्राई टू थिंक एंड एक्ट एज पर हिज इंस्टिंक्ट्स। So simple, it's this statement is in context that Rousseau is criticizing the reason that has modernity has developed. As simple as that. It's just this much. राइट। All right. Does anybody else have anything to add या फिर आगे चले? हो गया आई थिंक काफी इस पे। Yes, ठीक है? I think we should go ahead. Okay, all right. Let me just stop the recording and restart it.